Hi everyone, good morning. Well, this is Sarfaraz Khan, and once again I welcome you all in this YouTube channel that is Crow Skills Academy. So once again I've come with a new video session. In this video session we will learn some confusing words. That means in this video session we will be learning about some confusing words that confuse us during conversation or in written section. So now we have, or I have brought some 10 words, some 10 confusing words. In this we get confused. So here we have some lists so that we will study. But before we start, I would like to request you to watch the whole video till the end, and if you are new at this channel, please don't forget to hit the subscribe button. So now let's start our class, that what we will study in today's video session, right? So here we have some list of 10 confusing words, right? So the first word here we have is what? Advise, right? So these two words, if you get to see, अगर आप इन दोनों शब्द को अगर आप देखते हैं, तो one is advise and second one is what? Advise. Both are being pronounced in the same way, right? Advise, advise. But here in this word there is ending letters is what? CE and here SE. Advise, that means mashwara, right? And this one, advise, is what? मशवरा देना, यानी मशवरा करना या मशवरा देना, इसे कहते हैं एडवाइस. यानी ADVICE का क्या मतलब होता है? सिर्फ मशवरा या मशवरा, और एडवाइस का मतलब क्या होता है? मशवरा देना, राइट? सो दिस इज वर्किंग एज अ वर्ब एंड दिस वर्क्स एज अ नाउन. सो नाउ we will understand by using some examples, or we'll have some examples here to understand these two in better, right? चलिए, तो ये है एडवाइस. इसका क्या मतलब होता है? मशवरा, राइट? He did not listen to my advice, यानी वो मेरे एडवाइस को नहीं सुना, यानी वो मेरे मशवरा को ध्यान नहीं दिया या मेरे मशवरा को नहीं सुना. नेक्स्ट, एडवाइस जब ये वर्ब बन करके यानी मशवरा देना होता है, ADVISE, इसका क्या मतलब होता है? मशवरा देना. चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं. He advised me to work hard, राइट? वो मुझे मशवरा दिया या वो मुझे मशवरा दिया या मशवरा किया कि आप काम करें, राइट? He advised me to work hard. उसने मुझे क्या चीज़ का मशवरा दिया? कड़ी मेहनत करने का मशवरा दिया, राइट? So this is what the first one here we have is what? Advice, that is what? ADVICE, that means mashwara, and ADVISE, that means mashwara dena. So now here we have the second confusing words here, that you can see bridle, BRITAL, right? So this is pronounced as bridle, and this one BRITLE. It itself is being pronounced as bridle, right? Now the next Now the next one here we have is what? Bridle. So it is being pronounced as bridle, but here both the words that you can see that spelling is different but pronunciation is same. Bridle spelling is what? BRIDAL. When it is bridle, BRIDAL, then the meaning of the Hindi meaning of this bridle is what? विवाह संबंधी. लेकिन जब इसकी स्पेलिंग क्या होती है? BRIDLE, तो इसका क्या मतलब होता है? लगाम होता है. इसका क्या मतलब होता है? लगाम. चलिए इस एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. इस ब्राइडल का यानी विवाह संबंधी का एग्जाम्पल क्या है? इट इज माई ब्राइडल रिंग. ये मेरे विवाह का रिंग है या फिर विवाह संबंधित रिंग है, आप ये कह सकते हैं. और इस ब्राइडल यानी लगाम के लिए मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है? He bought a bridle for his horse. वो अपने घोड़े के लिए क्या खरीदा? लगाम खरीदा, राइट? तो ब्राइडल क्या एक तरह से नाउन हो गया, जो भी क्या जिसका मतलब क्या होता है? लगाम, राइट? He bought a bridle for his horse. उसने अपने घोड़े के लिए क्या खरीदा? लगाम खरीदा. चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने तीसरे कंफ्यूजिंग वर्ड्स की तरफ, राइट? So now we'll move on to our third confusing words. That is what? Beside and besides. This one is beside and this one is what? Besides. जब इसका स्पेलिंग beside, BESIDE होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? समीप यानी नज़दीक, राइट? और जब इसके स्पेलिंग BESIDES होता है, तो इसका क्या मतलब होता है? अतिरिक्त या फिर अलावा, राइट?
चलिए, तो बिसाइड को लेकर के एक एग्जाम्पल मैं देता हूं यहां पर, सिट बिसाइड मी। इसका क्या मतलब होता है? मेरे बगल में बैठो। मैंने क्या बोला? सिट बिसाइड मी, मेरे समीप बैठो या फिर मेरे बगल में बैठो। दूसरा, जब इसका मतलब बिसाइड्स BESIDES होता है, इसका मतलब क्या होता है? अतिरिक्त यानी अलावा। चलिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? मनी फॉर मनी एंड इंटरेस्ट बिसाइड्स। देखो, पैसे के लिए तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन इसके अलावा इंटरेस्ट भी लगेंगे। इसके अतिरिक्त आपको क्या देना होगा? इंटरेस्ट। सपोज दैट यू हैव टेकन लोन फ्रॉम समबडी एल्स, राइट, फ्रॉम वन ऑफ द पर्सन्स दैट यू हैव टेकन लोन. You don't only have to pay, you have to clear your money, but along with that or besides that, you have to pay interest. सिर्फ आपको पैसे के बदले पैसे ही नहीं देना, बस के इसके अलावा, इसके अतिरिक्त आपको क्या देना होगा? इंटरेस्ट भी देना होगा। चलिए, तो मूव करते हैं हम लोग अपने चौथे कंफ्यूजिंग वर्ड्स की तरफ। हमारा चौथा कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या है? आप देख सकेंगे CITE, राइट, और दूसरा क्या है? SITE। दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, साइट। इसे क्या पढ़ेंगे? साइट पढ़ेंगे। जब CITE ये साइट है तो इसका क्या मतलब होता है? कहना या सुनाना भी कह सकते हैं। और SITE का क्या मतलब होता है? स्थान यानी जगह। चलिए, तो व्हेन CITE का क्या मतलब होता है? कहना, और साइट का मतलब क्या होता है? स्थान। तो साइट को लेकर के जब ये कहना का मतलब निकल रहा CITE, तो इसको लेकर के एक एग्जाम्पल में देता हूं आपके सामने रख रहा हूं मैं। He cited many verses from Gita. He cited many verses from the Gita या फिर from Gita और from the Gita. उसने गीता से कई सारे वर्सेस उन्होंने क्या किए? कहे या फिर सुनाए। चलिए मूव करते हैं। इस साइट का स्पेलिंग को देखें, SITE। इसका क्या मतलब होता है? स्थान। दिस इज द न्यू साइट ऑफ आवर स्कूल। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? देखिए, ये हमारा स्कूल है, लेकिन ये स्कूल का, हमारे स्कूल का ये नया साइट है। यहाँ बनेगा ये फलां फलां फलां, ऑल दिस थिंग्स, रूम ऐसे बनेगा, प्लेग्राउंड ऐसे बनेगा, ऑल दिस थिंग्स। तो ये हमारे स्कूल का नया साइट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चारों आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का अगर कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो आज का ये सबसे पहला क्या रहा? एडवाइस, जिसका मतलब मशवरा, और इस एडवाइस का मतलब क्या होता है? मशवरा देना। इस ब्राइडल का मतलब होता है विवाह संबंधी चीज़, और इस ब्राइडल का मतलब होता है लगाम। BESIDE का मतलब होता है समीप या नज़दीक, और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। इस साइट का मतलब होता है कहना, और SITE का मतलब क्या होता है? स्थान। मैंने एग्जाम्पल्स के ज़रिए, एग्जाम्पल से भी मैं दे करके भी आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर ज़रूर हुआ होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे अपना अगला कंफ्यूजिंग वर्ड्स। किसी तरह का कोई डाउट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करेंगे। सो द नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हियर वी हैव इन टुडेज वीडियो सेशन इज व्हाट? फार्मर और फॉर्मर। सो व्हाट आई हैव सेड, मैंने क्या कहा है कि आज का जो हमारा पांचवा कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या है? फार्मर, और दूसरा क्या है? फॉर्मर, राइट। इस फार्मर का क्या मतलब होता है? किसान, और जबकि FORMER फार्मर का क्या मतलब होता है? पहला, राइट। सो दिस इज अवर फिफ्थ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, दैट इज वन इज फार्मर एंड द सेम वे वी कैन से दैट फार्मर, बट स्पेलिंग इज लिटिल चेंज्ड, राइट। फार्मर का क्या मतलब होता है? किसान, और इस फार्मर का मतलब क्या होता है? पहला। चलिए फार्मर को लेकर के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द फार्मर इज प्लाविंग द फील्ड। द फार्मर इज प्लाविंग द फील्ड। किसान क्या कर रहा है? हल जोत रहा है या फिर खेत जोत रहा है, ये किसान कर रहा है, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। और वी कैन से दैट माय फादर इज अ फार्मर, हिज फादर इज अ फार्मर। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, राइट। चलिए, अब फार्मर को लेकर के, जिसका मतलब क्या होता है? पहला, इसे लेकर के एग्जाम्पल्स में समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं, या फिर मैं आपके सामने आई एम पुटिंग एग्जाम्पल बिफोर यू। दिस इज व्हाट, और दैट इज व्हाट? हरेंद्र एंड धर्मेंद्र आर टू ब्रदर्स। मैंने क्या लिखा? हरेंद्र एंड धर्मेंद्र आर टू ब्रदर्स। द फार्मर इज माई बेस्ट फ्रेंड। दो भाई हैं, हरेंद्र और धर्मेंद्र, ये दो भाई हैं, जिसमें द फार्मर इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो पहला वाला है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, राइट।
तो ये रहा फार्मर और फार्मर, राइट। फार्मर मीन्स किसान और इस फार्मर का मतलब होता है, फार्मर मतलब क्या होता है, पहला। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने छठे कंफ्यूजिंग वर्ड्स की तरफ। बहुत ही कंफ्यूज करता है ये वर्ड, फेयर और फेयर। बोथ आर बीइंग प्रोनाउंस्ड, बोथ द वर्ड्स आर बीइंग प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे, फेयर, राइट। चलिए FAIR और दिस वन इज व्हाट, FARE। FAIR का दो मतलब होता है, वन इज सुंदर यानी ब्यूटीफुल और दूसरा मेला, राइट। चलिए जब इसका एग्जाम्पल सुंदर होता है तो जब इसका मतलब सुंदर होता है तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या समझेंगे, शी इज अ फेयर लेडी और शी इज अ फेयर गर्ल। वो एक खूबसूरत लेडी है या सुंदर लेडी है या वो एक खूबसूरत लड़की है, व्हाटएवर यू कैन से। दूसरा, जब इसका मतलब मेला होता है तो इसका एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, वी वेंट टू सी द फेयर येस्टरडे। हम लोग कल मेला देखने को गए या कुछ भी। आई लव गोइंग टू फेयर, आई लाइक गोइंग टू फेयर, मुझे मेला जाना मुझे पसंद है, राइट। चलिए मूव करते हैं। इसी फेयर का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग क्या होगा, FARE। इस फेयर का क्या मतलब होता है, इस फेयर का भी दो मतलब होता है, वन इज किराया और दूसरा क्या है, भोजन। जब इसका किराया मतलब होता है तो मैंने इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, आई हैव पेड द फेयर, आई हैव पेड द फेयर, मैंने किराया दे दिया है या जमा कर दिया है। और जब इसका मतलब भोजन है तो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है, सरफराज टेक्स सिंपल फेयर। सरफराज जो खाता है, खाना खाता है, बड़ा सिंपल साधारण खाना खाता है, he doesn't like non-vegetarians too much, just he likes simple fare, साधारण खाना खाना पसंद करता है, राइट। तो ये है फेयर का मतलब, FAIR का मतलब क्या होता है, सुंदर भी होता है और दूसरा मेला भी होता है। और इस FARE का मतलब क्या होता है, किराया और भोजन। तो ये जब वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ना तो कॉन्सेप्ट, सिचुएशन क्या कहता है, कहानी कहता है क्या, वहां पर ऐसे समझेंगे। अब कहीं फेयर में, वी वेंट टू सी द फेयर, हम लोग फेयर देखने के लिए गए थे, यानी हम लोग सुंदर देखने गए नहीं बल्कि मेला देखने गए। और आई हैव पेड द फेयर, आई हैव पेड द फेयर, इसका मतलब होता है मैंने किराया दिया है, जबकि मैंने यहाँ पर भोजन दिया है। ऐसा मतलब कहीं ऐसा है कि नहीं निकले, जैसे मैंने मकान मालिक को या रूम ऑनर, बिल्डिंग ऑनर को मैंने फेयर पे कर दिया या ऑटो वाले को मैंने फेयर दे दिया है, राइट। चलिए तो मूव करते हैं हम लोग अपने सातवें कंफ्यूजिंग वर्ड्स की तरफ। बहुत ही कंफ्यूज करता है ये भी वर्ड। इसका स्पेलिंग क्या है, HERD और दूसरा क्या है, HEARD। बोथ द वर्ड्स आर बीइंग प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे, हर्ड। इसे क्या पढ़ते हैं, हर्ड, राइट। इस हर्ड का क्या मतलब होता है, झुंड, कोई जानवरों का झुंड। और इस हर्ड का क्या मतलब होता है, सुना। चलिए इस हर्ड को हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आई सॉ अ हर्ड ऑफ कैटल इन द फील्ड, आई सॉ अ हर्ड ऑफ कैटल इन द फील्ड, मैंने खेत में या फील्ड में कैटल के झुंड को देखा, ठीक है। और इस हर्ड का क्या मतलब होता है, सुना। चलिए ये हियर का पास्ट है, हर्ड, राइट। I have heard your story. I've heard your story. मैंने आपकी कहानी सुनी है। तो ये रहे आपके सामने पांचवा, यानी फार्मर, किसान। और इस फार्मर का मतलब होता है पहला। इस फेयर का मतलब सुंदर या मेला भी होता है और इस फेयर का मतलब किराया और भोजन भी होता है। इस सातवां हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या है, हर्ड का मतलब होता है झुंड, जब इसका स्पेलिंग होता है HERD। और इस HEARD का मतलब क्या होता है, सुना, यानी हियर का पास्ट। तो ये रहे 7 कंफ्यूजिंग वर्ड्स टोटली अब तक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड हियर वी हैव इन टुडेज वीडियो सेशन इज व्हाट, आइडल, और दिस वन इज व्हाट, ITL, राइट। इस आइडल का स्पेलिंग क्या होता है, ITLE, और जबकि इस ITL का स्पेलिंग क्या होता है, ITEAL, राइट। इस आइडल का हिंदी मतलब क्या होता है, बेकार, और जबकि इस ITL का क्या मतलब होता है, आदर्श, राइट। So both the words are quite similar in seeing also and even little bit in pronunciation too. इस ideal का क्या मतलब होता है, बेकार, और इस ideal का क्या मतलब होता है, आदर्श। जब इसके एग्जाम्पल को हम समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस ideal का क्या मतलब होता है, बेकार। एग्जाम्पल देखें हमारा, Don't sit idle, बेकार मत बैठो। और इस ideal का एग्जाम्पल देखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, आदर्श। An Indian girl is an ideal wife.
एक भारतीय लड़की आदर्शवादी या आदर्श पत्नियां होती हैं या पत्नी होते हैं, राइट। आप एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं दैट माई फादर इज माई आइडियल, और महात्मा गांधी इज माई आइडियल। आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस आइडियल का क्या मतलब होता है? बेकार। और इस आइडियल का क्या मतलब होता है? आदर्श। So now we'll move on to our 9th confusing words, that is what? Heal and heal. Both the pronunciation, both the words are being pronounced, or both the words have been being pronounced in the same way, that is what? Heal. HEAL का मतलब क्या होता है? ठीक करना, जबकि HEEL का मतलब क्या होता है? एड़ी, राइट। तो heal का मतलब क्या होता है? ठीक करना, HEAL। इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें हम लोग। The wound will soon heal up. जख्म जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, राइट। और इस हील का मतलब क्या होता है? एड़ी, HEEL, एड़ी, राइट। वेल एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, आई हैव अ वुंड इन माई हील। मेरे एड़ी में क्या है? जख्म है। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? द वुंड विल सुन हील अप, यानी जख्म बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और इसका यानी इस HEEL के एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? I have a wound in my heel. मेरे एड़ी में क्या है? जख्म है। So now we'll move on to a last confusing word, that is what? Naughty, and this one is also naughty, right? NAUGHTY, it is pronounced as naughty, and KNOTTY, this is also being pronounced as naughty. इस naughty का क्या मतलब होता है? शरारती, जबकि इस naughty का मतलब क्या होता है? कठिन। एग्जाम्पल से समझें, महेश इज ए नॉटी बॉय। कोई और भी एग्जाम्पल अगर आप दे सकते हैं, दैट आई लाइक हिज नॉटी हैबिट, आई डोंट लाइक हिज नॉटी हैबिट, मुझे उसके इस शरारती हरकत मुझे पसंद नहीं है। और कई सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, इस नॉटी का मतलब KNOTTY, नॉटी का मतलब क्या होता है? कठिन। एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या है? इट इज अ नॉटी प्रॉब्लम, इट इज a naughty problem, right? So this is, यानी ये एक कठिन समस्या है। So far we have learnt, or now we can say that we have learnt, we have studied 10 confusing words. उम्मीद करते हैं कि सारे 10 confusing words जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो अगर नए विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।